Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamma gani to all of you. Welcome to today's class, and as you all know, today is your ICSE grade 10th, and today we'll be talking about the conversion and combination of solids. Okay, so once again, welcome all of you to today's class, and let us start the class. This topic is very important considering your exam point of view because most of the questions comes from this part, combination and conversion of the solids. So I will first tell you the basic tricks, basic knowledge which you should have, and after that the questions are very easy if you know the formulas all well. Okay, so before I start the class, to all those students who are going anywhere, suppose anywhere else you are going for the tuitions or for your coaching, you must be facing one of the other problems out of these. Either the doubts are not taken care of properly, notes are not provided, tests are not taken at a regular interval of time, assignments are not shared with you, competitive examination if it is there, any other examination, you don't know from where you can get the coaching for that. Okay, choice of schedule and the choice of language. So all these problems are solved by Vedantu, because at Vedantu in each and every class your every doubt will be taken care of. Notes will be provided for every class, each and every class which you attend on Vedantu. Assignments will be shared with you for each and every class. Assignments will be taken after every class, and tests will be taken at a regular interval of time. Other than that, any competitive examinations like NTSE, KVPY, Olympiad, anything else is there, no need to worry. Vedantu will teach you for that as well under this course. No extra fee you need to pay. Other than that, schedule, if suppose you miss your class because of some reason, so no need to worry about it. You can always watch the recording. But if you go to any other school or any other coaching, or if you miss the class, you cannot do anything about it. You have to wait till the teachers will start the revision. But the thing like here, you can always watch the recording and clear your doubts. And choice of language, Hindi or English. Right. Other than that, you will be getting unlimited live classes. There is no upper limit on how many classes you can attend. Unlimited live classes you can attend. All micro and crash courses will be available to you free of cost. Okay. Micro courses are your chapter specific courses. So suppose if you want to revise any chapter, let us say topic triangles you want to revise. So you don't have to wait for anyone to revise the topic. Take the micro course of the topic triangle and learn it. If you want to learn any one chapter in advance, take the micro course. So you have the power to design your own curriculum. Other than that, crash course, that is your revision courses, will be available to you. Performance reports will be shared with you so that you can track your progress, where you are lacking something or where you need to work hard and where you are improving, and personalize attention to each and every kid, right? So for that, you need to register to this link. You need to go to this link vdnt.in/ytpro. And the good part is, if you will apply the coupon code, ये वाला GP Pro apply करोगे, you will get 15% off. Flat 15% off मिलेगा, flat 15% off. ठीक है बेटा, I will tell you the more details, free fee structure वगैरह सब कुछ बताऊंगा आगे जाके. तो आज का क्लास चालू करते हैं. अब देखना, ये जो क्लास बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है. अगर तुमने शुरुआत का बेसिक समझ लिया तो आगे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी. सेकेंड थिंग कि चीजों को विजुअलाइज करना सीखो, है ना. जब भी मैंने, इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास जब किया था, उसमें तो मैंने टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम के मीनिंग बताए थे. टीएसए मतलब जो भी सरफेस एरिया है, सारी सरफेसेस है उन सबका एरिया. सीएसए मतलब टॉप और बॉटम छोड़ के, एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम ऑल द सर्फेसेस विच आर देयर, उनका एरिया. एंड योर वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अब जब वी कन्वर्ट एनी वन सॉलिड टू एनी अदर सॉलिड, तो उस केस में क्या होता है, हमेशा याद रखना बेटा कि कोई भी तुम शेप है, मान लो ऐसा कुछ एक 3D शेप है तुम्हारे पास में, है ना, ये कुछ ऐसा बॉल है या फिर कुछ ऐसा ले लो. चलो बॉल बनाते हैं अच्छे से, ठीक है, एक अच्छी सी कोई बॉल बनाते हैं, और मान लो तुमने उस बॉल को कन्वर्ट किया है एक क्यूब में. ठीक है, ये एक बॉल है तुम्हारे पास में, एंड उस बॉल को तुमने क्यूब में कन्वर्ट किया है. ठीक है, अब हमेशा याद रखना बेटा कि अगर जब कन्वर्ट कर लेते हैं ना यार, तो देखो सरफेसेस तो ना नहीं आ सकती है. सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कभी सेम नहीं रहता. जैसे ही तुम शेप चेंज करोगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चेंज हो सकता है. एक चीज जो कॉमन रहेगी वो रहेगी वॉल्यूम. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि वाई वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लॉजिक सोचो
कि यार सी आई एम नॉट एडिंग एनी एक्स्ट्रा मटेरियल इन दैट। जो भी बॉल था मेरे पास में, स्फेरिकल बॉल था, उसको अगर मैं शेप चेंज करके कन्वर्ट करके मेल्ट करूं, मान लो ये मेटल बॉल था, मेटेलिक स्फेयर बॉल था, उसको मैंने पहले है ना ऐसा कास्ट किया, मेल्ट करके क्यूब के शेप में ले आया। अब एक बात बताओ यार, इस कन्वर्जन में एक्स्ट्रा मेटल तो कहीं से आया नहीं है, नहीं मेटल मैंने निकाल के ही रख दिया है, जो अमाउंट ऑफ मेटल बॉल में था उतना का उतना मेटल क्यूब में भी है, दैट इज वाई वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है बेटा, ये कन्वर्जन ऑफ, अगर एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी मेन की होती है कि वॉल्यूम जो रहेगा ना वो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इक्वल कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, बस यहां से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएसए और टीएसए भी सेम रहेगा, वो सेम नहीं रहेंगे, है ना, वो चेंज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है ना। जब सीएसए टीएसए बोले तो सीएसए टीएसए के लिए हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा कौन सी सरफेस कहां आ गई, ये सब कुछ, वो सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब जिन लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर सीएसए क्यों या फिर टीएसए सेम क्यों नहीं रहेगा, तो एक एग्जांपल सोचो। मान लो तुम्हारे पास में एक स्फेरिकल बॉल है। अब अगर मैं इसका टीएसए बोल रहा हूं या सरफेस एरिया बोल रहा हूं बेटा, तो सरफेस एरिया में बॉल का जो पूरा सरफेस है वो उसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, इस बॉल को ना ये बीच में से काट दिया। आई हैव कट दिस बॉल फ्रॉम द मिडल, ये बीच में से मैंने काट दिया। अब अगर बीच में से काटा है तो तुम लोग देखोगे कि ये जो बॉल थी मेटेलिक बॉल थी, अब ये ऐसी हो जाएगी, है ना, ऊपर वाला पार्ट ऐसा हो गया एंड नीचे वाला पार्ट ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रफ डायग्राम समझ लो थोड़ा सा। ओके, ये तुम्हारी दो बॉल होगी। अब एक बात बताओ, जो पुरानी जो बॉल थी हमारे पास में, जो पूरी मेटल बॉल थी, उसकी जो सरफेस थी वो सरफेस यहां पे रहेगी एंड ये नीचे वाली सरफेस जो है ये यहां पे रहेगी। ठीक है, बट ऐसा काटने के बाद में बेटा एक बात तुमने देखी होगी कि यार ये जो दो नई सरफेसेस आ गई, देख रहे हो, ये दो नई सरफेस जनरेट होगी जो पहले नहीं थी, जो पहले सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं थी। बट अगर मैं अब इन दोनों का सरफेस एरिया निकालूंगा तो ये सरफेस और ये सरफेस, जो न्यू सरफेस है, उनका भी एरिया ऐड होगा। तो कन्वर्ट करने में, शेप कन्वर्ट करने में या कुछ भी शेप चेंज करने में कई बार नई सरफेसेस आ जाती है या फिर सरफेसेस वो मर्ज हो जाती है। तो उस केस में हम लोगों को सोचना पड़ेगा बैठ के, जैसे यहां पे मैं बताऊंगा कि इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, तो ये पुराना जो स्फीयर का सरफेस एरिया प्लस ये सर्कुलर बेस का एरिया और ये सर्कुलर बेस का एरिया। तो ऐसे दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना वॉल्यूम फिक्स रहेगा, सीएसए टीएसए का कुछ नहीं कह सकते हो। ओके, सो व्हेन लिक्विड इज पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज इनटू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम। ऑब्वियसली बेटा, एक ग्लास है, दो अलग अलग ग्लास है, एक ग्लास पानी अगर तुमने दूसरे ग्लास में डाल दिया तो पानी का अमाउंट थोड़ी चेंज हो जाएगा, पानी तो उतना ही रहेगा, राइट। सो लिक्विड उतना ही रहेगा। तो अगर मान लो ये मेरे पास फुल ग्लास भरा हुआ है पानी से, मैंने जब उसको पोर किया तो ये वाला ग्लास भी है, ये भी फुल भर गया, मतलब दोनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्ड कर रहे हैं, कैपेसिटी सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की रोल यहां पे प्ले करता है। याद रखना, सीएसए और टीएसए हम लोगों को नहीं पता है कि सेम रहेगा या नहीं रहेगा, हम लोगों को विजुअलाइज करके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्फेसेस है। ठीक है, ओके। याद रखना, we shouldn't add the surface area of the two constituent shapes because some part of the surface area gets merged when the two shapes are combined। जब दो शेप को मर्ज करते तो ऐसा नहीं है, देखो जब दो शेप को मर्ज करेंगे, मान लो मैंने ये दो क्यूबॉइड है मेरे पास, मोबाइल भी क्यूबॉइड समझ लो, इसको भी क्यूबॉइड समझ लो, मैंने जब इसको मर्ज कर दिया, वॉल्यूम इन दोनों का मर्ज हो गया, वॉल्यूम इन दोनों का मर्ज हो गया, मगर सरफेस एरिया मर्ज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल के नीचे जो सरफेस थी इसकी, वो और मोबाइल की नीचे वाली सरफेस मर्ज हो गई, अब वो दिख नहीं रही है, तो अब मुझे ये जो बाकी का सरफेस दिख रहा है उनका एरिया निकालना है, समझ रहे हो। तो सरफेस मर्ज हो जाती है, इसलिए सरफेस एरिया और सीएसए ये सब सेम नहीं रहता, बट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। अगर दो चीजों को कंबाइन कर रहे हो वॉल्यूम ऐड कर लो, दो चीजों को हटा रहे हो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर लो, वॉल्यूम बहुत इजीली चल जाता है, बट सीएसए टीएसए में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम हमेशा जो होगा, अगर दो चीजों को कंबाइन कर रहे हो ऐड कर लो, दो चीजों को अलग कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर लो, तुम्हारा वॉल्यूम अच्छा काम करता है। तो इन सारे क्वेश्चंस में वॉल्यूम फॉर्म्स अ वेरी की रोल, है ना, वॉल्यूम के ऊपर हमेशा सोचना होता है। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे बेसिक्स हैं। आई होप कि एग्जांपल से इट इज ऑल क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन।
द रेडियाई ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल। अब देखना ध्यान से, थोड़ी बात ध्यान से सुनना। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसेस बोल रहा है यहां पे, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसेस की बात चल रही है। उसमें क्या पूछ रहा है तुमसे ये, जब ये इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसेस की बात आ गई बेटा, इसका मतलब ये है कि अंदर भी कुछ सरफेस है, बाहर भी कुछ सरफेस है, मतलब ये हॉलो चीज की बात हो रही है। मेटेलिक स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब क्या, ऐसा हॉलो सिलेंडर होगा कुछ, है ना। ऊपर बाहर एक शेल है, अंदर एक शेल और रहेगा, ठीक है। तो इंटरनल 3 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर का क्या है, इनका रेडियस है। ये बात याद रखना, रेडियस दिया हुआ है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, ये कोन में कर लिया आपने इसको, हाइट 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन पता करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन कहां से कहां हुआ है बेटा, जो कन्वर्जन हुआ है हमारा, दैट कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल कैसा होगा वो देख लो एक बार, तुम लोगों को अगर डाउट है तो। स्फेरिकल शेल ऐसा होगा, देखो अगर मैं पूरा ऐसे ड्रॉ करता हूं तो सॉलिड है, अंदर की साइड में भी एक शेल है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ना बेटा, बस ये खाली ये बीच बीच में भरा हुआ है, ये यहां पे मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल जो है वो यहां भरा हुआ है, अंदर बीच में से पूरा खाली है, बीच में से पूरा खाली है। तो यहां पे बेटा इसका इंटरनल रेडियस इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस जो है वो दिया हुआ है तुमको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा स्फेरिकल शेल था। ऐसे स्फेरिकल शेल को व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कन्वर्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक कोन बना दिया है जिसका हाइट जो है बेटा दैट इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस आर है और हाइट, एक बात याद रखना, कोन में जो हाइट होता है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर होता है हाइट, ये वाला जो होता है ये स्लैंट हाइट होता है। तो हाइट जो है h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड, ये पता है हमको, वेन एवर द शेप इज चेंजिंग वी नो बेटा कि वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। तो मुझे ये पक्का है कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फीयर मत लिख देना, स्फेरिकल शेल है, हॉलो है अंदर से, स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो जब भी ऐसे हॉलो आता है, आई हैव टोल्ड यू वेरी इजी पार्ट, हॉलो में बहुत इजी होता है, वॉल्यूम निकालना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम। तो आउटर स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब 5 क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ठीक है। ये तुम्हारा हॉलो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल हो गया, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई, आर स्क्वायर नहीं पता बट h इज 32, ठीक है। अब देखो अच्छी बात क्या है बेटा कि इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसे कैंसिल हो जाती है मस्त तरीके से। ये देखो जैसे 3 to 3 कैंसिल हो गया, पाई टू पाई कैंसिल हो गया, है ना, 4 1 4 8 हो गया, दिख रहा है सब कुछ, राइट, इजी है। अब 125 माइनस 3 क्यूब कर लो, 3 क्यूब इज व्हाट 27, सो 125 माइनस 3 क्यूब कितना हो रहा है 27 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये तुमको मिलेगा 98, आर क्यूब इज 98, तो 98 में तो ऐसा, सॉरी आर स्क्वायर तुम्हारा 98 बन रहा है, आर स्क्वायर इज योर 98, ये इंटू 8 भी है ना यहाँ पे, हाँ, तो आर स्क्वायर, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो अपॉन 8, 98 अपॉन 8 इफ आई सिंप्लीफाई 49 डिवाइड बाय 4, तो आर स्क्वायर जो है तुम्हारा 49/4 है, मतलब आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, आर इज इक्वल टू 7/2, स्क्वायर रूट कर लो उसका। तो रेडियस ऑफ द बेसिस 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेसिस 7/2 सेंटीमीटर। देख रहे हो वॉल्यूम कंपैरिजन हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द बेसिस 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू लाइक। नेक्स्ट पार्ट देखो, अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड, है ना, ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू कोनिकल शेप्ड स्मॉल कंटेनर्स
each of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many containers are necessary to empty the bowl? है ना, empty करना है बोल को पूरा. क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बोल है, तो हमेशा बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. देयर इज वन हेमिस्फेरिकल बोल, हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर मतलब वो स्फीयर को दो पार्ट्स में काट लो वैसा वाला. तो ये अगर तुम्हारे पास में हेमिस्फीयर है, ठीक है, दिस इज योर हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर. ये इंटरनल रेडियस जो है बेटा ये 9 है और फुल ऑफ लिक्विड, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, कचाकच भरा हुआ है. दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू कोनिकल शेप्ड स्मॉल कंटेनर्स. ऐसा कोन शेप के छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये लिक्विड भरना है. ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर. याद रखना बेटा डायमीटर 3 दिया हुआ है एंड हाइट 4 दी हुई है. हाउ मेनी कंटेनर्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बोल. कितने कंटेनर होंगे नेसेसरी एम्प्टी द बोल करने के लिए. तो मैंने बोल दिया कि चलो n कोन्स आर रिक्वायर्ड, है ना, छोटे है ना कोन्स, तो मैंने बोल दिया कि चलो सर n कोन्स रिक्वायर्ड है. अब ऑब्वियसली अगर मैं लिक्विड को यहां से किसी और में ट्रांसफर कर रहा हूं तो लिक्विड जितना पहले था उतना बाद में रहेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम. तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन फर्स्ट केस क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ट्रांसफर करने के बाद में जितने भी सिलेंडर फॉर्म, जितने भी कोन फिल कर दिए, वॉल्यूम ऑफ दोस कोन्स. तो आई कैन से कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इनटू नंबर ऑफ कोन्स, जितने भी कोन्स फिल हो जाएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा क्या होता है, तो इट इज 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब. सो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 1/3 पाई इंटू आर. अब देखना रेडियस इज नॉट 3, डायमीटर इज 3, सो आर स्क्वायर, सो 3/2 इंटू एच इज 4 इंटू एन हो गया तुम्हारा. ठीक है. अब देखो कैंसिलेशन करने में बड़ा सही रहता है, हमेशा कैंसिलेशन कर लिया करो. ऐसा मत करना कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत लेंथी हो जाएगा. कैंसिलेशन में देखो पाई पाई ऐसे ही कट जाता है, ठीक है. देन 2 2 जा, ये 4 यहां पे ऐसे कैंसिल हो गया. अब बस इस 3/3 को उधर शिफ्ट करो, तो यहां पे क्या है तुम्हारे पास में 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड यहां पे तुम्हारे पास में 3 इंटू 3 बचा है इज इक्वल टू एन. तो 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है. तो क्या मिल गया बेटा, n इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 2 इज 162. तो टोटल 162 अपने को कोन चाहिए होंगे. तो 162 कोन्स होंगे, तो दे विल बी एबल टू फिल दिस होल वाटर. जो हेमिस्फीयर में भरा हुआ था वो पूरा का पूरा वाटर कंटेन कर पाएंगे. ठीक है, देख लो बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चंस. वॉल्यूम को समझ गए, अगर तुमने उसकी बेसिक्स को समझ गए हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे. उसको समझना बहुत जरूरी है. अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता है. बच्चे रट के चले जाते हैं, ये वो रहेगा ये वो रहेगा. फॉर्मूला रटो मत यार, मैथ्स तो तुम्हारे रियल लाइफ रिलेटेड है ना. तो उसको समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा, एंड मजा आएगा तो समझ आएगा, बात होता है. राइट. अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड. अब देख दो यहां पे, अभी तक जो मैंने किया था कन्वर्जन के क्वेश्चंस किए थे. अभी तक हर जगह पे मैं कन्वर्जन कर रहा था, ठीक है. हर जगह पे अपन ने कन्वर्जन किया, यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया. अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कॉम्बिनेशन कर रहा हूं. अब मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूं. कॉम्बिनेशन क्या है देखो, अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म. अब देखो इसमें क्या है ना कि तुम्हारे पास में कोन है, उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर दिया और दोनों का डायमीटर सेम है. तो पहले मान लो बेटा ये मेरे पास में एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है मेरे पास में, ठीक है. ये हेमिस्फीयर हो गया. अब इस हेमिस्फीयर में बेटा अगर तुम एक बात देखोगे, इसके ऊपर ना मैंने कोन चढ़ा दिया है. डायमीटर सेम है, तो ये बताओ ये जो सरफेस है डायमीटर, उन दोनों की सर्कुलर सरफेस, अगर डायमीटर सेम है तो सर्कुलर सरफेस एग्जैक्टली एकदम मैच हो जाएगी ऐसे, ठीक है. और ये मान लो तुम्हारा कोन है, ये तुम्हारा कोन है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस भी सेम जगह पे होगा यहां पे, ठीक है. अब क्या है ये हेमिस्फीयर का डायमीटर, सॉरी कोन का डायमीटर 7/7 सेंटीमीटर है. कोन का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2 हो गया. बहुत इजी है. कोन का डायमीटर 7 सेंटीमीटर ये वाला हो गया,
अगर कोन का डायमीटर 7 है तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर 7 होगा, और हाइट ऑफ द कोन जो है बेटा वो हो गई तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन। तो क्या बोल रहे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 10 फॉर्म। तो यार वॉल्यूम तो इजी है ना, मैंने क्या बोला, कंबाइन कर रहे हो तो सरफेस एरिया के बारे में सोचना होता है। सरफेस एरिया कैसे निकाले, मान लो अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम का तो बेटा बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, बस दोनों को कंबाइन किया है तो कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बहुत इजी है। मान लो अगर मैं सरफेस एरिया अगर तुमको इस सॉलिड का पूछ लो, अगर मैं तुम लोगों से सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछूं इसका कि इसका सरफेस एरिया बताओ, तो इन दैट केस बात सोचो तुमको क्या क्या सरफेस दिखेगी, सरफेस जो जो सरफेस दिखेगी उसका एरिया हम लोग ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो कोन के चक्कर में बेटा मेरे को तो ये एक तो ये कर्व्ड सरफेस दिखेगी, है ना। बात बताओ ये क्या सर्कुलर बेस वाली सरफेस दिखेगी, नहीं, वो तो कवर हो गई, वो तो कवर हो गई। तो मेरे को एक तो CSA ऑफ कोन दिखेगा, प्लस ये हेमिस्फीयर का भी तो CSA दिखेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उनके सर्कुलर बेस है बेटा, वो तो दोनों कवर हो गए। अब वो सरफेस हमको थोड़ी दिखेगी यार, वो सरफेस थोड़ी दिखेगी, वो तो खत्म हो गई, वो अब नहीं दिखेगी। तो जो सरफेस दिख रही है, जो सरफेस को टच कर सकते हो, उसका एरिया, सरफेस एरिया अपने को निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो गया, CSA और हेमिस्फीयर। अब ऐसा नहीं है कि हर बार CSA ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू लुक एट ईच एंड एवरी पार्ट। तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है सरफेस एरिया में, हमेशा विजुअलाइज करना होता है सरफेस एरिया में कि कैसा सॉलिड दिखेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। ठीक है बेटा, तो ये वाली कैलकुलेशन तो कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 282.33 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा, 282.33 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल 42 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल। अब रेक्टेंगुलर सॉलिड का मैंने बोला था बेटा क्यूबॉइड होता है, सॉलिड मतलब वो 3D शेप है रेक्टेंगुलर का, और सॉलिड मतलब पूरा मेटल से भरा हुआ है। ठीक है, और कैसा मेटल दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके का कुछ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ मान लो क्यूबॉइड है, ये वाला 42, ये वाला 30 एंड ये वाला 20। ठीक है, जब भी ऐसा 42 बाय 30 बाय 20 दिया होता है ना, तो वो इस ऑर्डर में देता है, L इंटू बी इंटू एच फॉर्म में देता है। A conical cavity of diameter 14 centimeter and depth 24 centimeter is drilled out। अब इसमें क्या कर दिया बेटा, मैंने ना एक कोनिकल कैविटी मतलब एक कोनिकल छेद कर लिया, कोन के फॉर्म में एक छेद कर लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो मान लो मैंने ऐसा कोई छेद कर लिया उसके अंदर, उस छेद में क्या बोला है मैंने ये बोला है कि भैया छेद जो है, छेद कैसे हुआ है, छेद कैसे हुआ है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है, और जो छेद की जो डेप्थ है वो 24 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, छेद ये ऊपर वाली सरफेस पे तो होगा नहीं, यहां पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे मेरे पास डेप्थ जो है वो खाली 20 ही है, तो और नीचे कैसे जाऊंगा, समझ रहे हो। तो छेद यहां पे है नहीं, थोड़ा बहुत समझना है चीजों को, क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि यार सर ये छेद यहां पे तो नहीं बना सकते हम लोग, है ना, ये वाला छेद यहां पे तो नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा, देखो बनाते हैं उसको। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये वाली सरफेस पे नहीं बनेगा, ये पता चल गया। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको छेद को यहां पे भी बना सकते हैं, क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर भी मिल सकता है और डेप्थ 24 भी मिल सकती है, दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो कि छेद जो है वो कोनिकल कैविटी जो है वो यहां बन गया, ये यहां पे। ठीक है, ये एग्जैक्टली 14 का बनाना है, तो थोड़ा छोटा करते हैं उसको, रेफरेंस के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको। ये मान लो ऐसे ऐसे है कोनिकल, और उसको अगर तुम छेद को देखोगे तो वो अंदर जाके यहां कहीं पे 24 सेंटीमीटर का हो रहा है। ठीक है, वो अंदर की साइड है, वो छेद ऐसे तुमको दिख नहीं रहा, तुमको ये पूरा छेद ऐसा दिख रहा है, कोनिकल छेद बना दिया इसके अंदर। अब क्या बोल रहा है, पहली बात, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एंड वेट ऑफ द मटीरियल ड्रिल्ड आउट इफ इट वेज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा है। अब एक बात बताना बेटा, पहले ना सरफेस एरिया का देखते हैं हम लोग, ये जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा हुआ है। पहली बात बताओ, सरफेस एरिया में सोचते हैं यार क्या क्या मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि हाँ सर, ये मेरे को सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड जो था वो तो दिख गया, वो पहले था।
अब उसमें से ये देखते हैं कि कौन सा सरफेस एरिया ऐड हो गया, कौन सा सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि सर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए पहले तो मुझे ये पता था कि हाँ सर मेरे पास में एक पूरा सरफेस एरिया था क्यूबॉइड का, वो था। अब उसके अंदर क्या ऐड होगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई नई सरफेस होगी तो वो ऐड कर लेंगे, कोई सरफेस चली जाएगी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक नई सरफेस मुझे पता चल गई कि ये जो अब सर अगर ये कोनिकल छेद है अगर, तो इसके ये वाला एरिया मेरे को नई सरफेस दिख जाएगा ना, वो सरफेस को टच कर सकते हैं, दिख जाएगा वो सरफेस, एक नई सरफेस आ गई उसके अंदर। पहले वो जब क्यूब खाली था तो वैसा नहीं था, बट अब ये अंदर की साइड में कोन के अंदर की सरफेस आ गई, तो ये कौन सी कर्व्ड सरफेस है, तो इसके अंदर CSA ऑफ कोन डाल दो, CSA ऑफ कोन। ठीक है, बट अब ये वाली चीज ना बच्चे भूल जाते हैं। कौन सी वाली बात मैं कह रहा हूं यार, एक बात बताओ बेटा, ये तो कोन का छेद है, ये कोनिकल कैविटी है, तो ये ऊपर की साइड में ये जो यहां पे है बेटा ये वाला सर्कुलर बेस, ये पहले यहां पे सरफेस था क्यूबॉइड का, पहले क्यूबॉइड का मेटल था यहां पे, बट अब तो हटा दिया, ये तो कैविटी है। तो यहां पे तुम लोग देखोगे कि नो मटेरियल, ये नो मटेरियल एट टॉप, यहां पे कुछ नहीं है, टॉप पे कोई मटेरियल नहीं है, अंदर भी कोई मटेरियल नहीं है, बस वो है कि सरफेस एरिया में मेटल दिखेगा मेरे को, ऊपर तो कोई मेटल नहीं है, इसलिए मैंने खाली और खाली CSA लिया। बट CSA लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या मैंने ये सर्कुलर बेस का एरिया हटाया? क्यों हटाना है मुझे? क्योंकि जब मैं TSA ऑफ क्यूबॉइड काउंट कर रहा हूं तो मैं ये वाला एरिया भी काउंट कर रहा हूं ना यार। अगर मैं TSA ऑफ क्यूबॉइड कर रहा हूं तो TSA में तो मैं ये भी सोच रहा हूं कि इस छेद के यहां पे भी मेटल है, बट वो तो वहां पे भी सरफेस है, वहां तो सरफेस है नहीं, तो ये वाली सरफेस तो नहीं है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन, ये जो कोन का सर्कुलर सरफेस जो है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? ये TSA की वजह से, कि पूरे टोटल में से वो सर्कल भी तो हटा दिया ना, वो निकल गया। सोचो ये तुम्हारे पास में उस TSA का ना, खाली इस फेस को देखो, ठीक है, इस फेस को देखो, ये तुम्हारा TSA का सरफेस था। अब इसके अंदर मैंने अगर कोन ड्रिल किया, ठीक है, तो कोन का CSA तो तुमको दिख गई नहीं सरफेस, बट यहां पे अब एक छेद है ना, तो वो तो TSA में काउंट हो गया, तो वो पार्ट हैज टू बी रिमूव। बस अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया तुम्हारे पास में, तो लगाओ फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ LB, सो 42 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 42 प्लस CSA ऑफ कोन पाई। CSA ऑफ कोन क्या होता है बेटा? अच्छा, अब ये बोल रहा है CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन, तो क्या हो गया? पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब स्लैंट हाइट निकालना है बेटा, तो स्लैंट हाइट अपने को पता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोन का रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द कोन क्या है? डायमीटर 14 है, तो रेडियस ऑफ द कोन, ये इसका रेडियस जो होगा वो 7 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, डेप्थ तुम्हारा 24 स्क्वायर है, तो L जो होगा वो तुमको 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। स्लैंट हाइट जो है वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा 625 करके। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो इसको बड़े वाले को यार। 42 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1260 प्लस 600 प्लस 840। ठीक है, प्लस ये पाई आर एल कर दो, तो प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं, पाई इज 22/7, रेडियस इज व्हाट 7 इंटू स्लैंट हाइट इज 25 माइनस 22/7, रेडियस क्या है 7 इंटू 7, दिस टू दिस गॉट कैंसल। तो अब इसको पूरा सॉल्व कर दो, तो 1260 प्लस 840, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इधर दिया तो 1300 प्लस 600 इज 1900, 1900 प्लस 800 will be equal to 2700, 2700 into 2 is 5400, तो 5400। अब यहाँ पे देखो this 7 to this 7 got cancelled, 22 into 25, तो it will be equal to 11 into 50, so 550, and minus ये 22 7s are, so it is 154, so minus 154। बस ये तुम्हारा केस है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5400 प्लस 500 5900 एंड माइनस 4, 5900 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 5896
सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। इस वाले पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये वाला पार्ट क्या है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड प्लस सीएसए ऑफ कोन माइनस सर्कुलर बेस, क्योंकि वहां पे अब कोई सरफेस नहीं है। जो सरफेस एक्स्ट्रा आ रही है ऐड दैट, जो सरफेस रिमूव हो गई है सब्ट्रैक्ट इट, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो वॉल्यूम का केस कितना इजी होता है। वाई वॉल्यूम इज सो इजी, बिकॉज पहले क्यूबॉइड था, उसमें से स्फीयर कोन हटा दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि मेटल कितना गया, मेटल कितना गया, जितना कोन है उतना मेटल चला गया, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बताओ इतना इजी होता है मेटल, तो ये मेटल निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है बेटा, L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच है बेटा, स्लैंट हाइट नहीं होता है यहाँ पे, एच होता है। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच कर लो, 42 इंटू 30 इंटू 20 माइनस 1/3 इंटू पाई, रेडियस क्या हुआ बेटा 7 है अपना रेडियस इसका, इंटू एच इज 24। ठीक है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 8 जा हो गया यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 इंटू 3 6, 25200 माइनस हियर 8 7 जा 56 एंड 56 इंटू 22 करना है ना। सो 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 2 3 2। तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको तुम्हारा वॉल्यूम मिल जाएगा उसका। ठीक है, इसको सबट्रैक्ट कर देना, वॉल्यूम मिल जाएगा ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और लास्ट में द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट इफ इट वेज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन ने कितना मटेरियल ड्रिल आउट किया बेटा, ठीक है, इसको क्या मार रहा है तुम्हारा, ये देख लो आंसर, इसका आ रहा है तुम्हारा 23968, 23968 आ रहा है। ठीक है, 23968 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आया हमारे पास में, कोनिकल कैविटी का 1232 आया है, 1232 आया, याद रखना। अब बोल रहा है वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट इफ इट वेज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा मटेरियल ड्रिल आउट क्या है यार, जो कोन का जो कैविटी बना है, तो वो जो अगर मैं मेटल को निकाल दूं अगर, तो वो मेटल से एक कोन बन सकता है ना, अगर ऐसा कैसा निकाल दूं अगर मैं पूरा, तो मेटल से पूरा एक कोन बन सकता है सेम साइज का, कि एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, क्योंकि वही मटेरियल बाहर आया। तो जो मटेरियल ड्रिल्ड आउट हुआ है, द मटेरियल विच एवर हैज बीन ड्रिल्ड आउट, तो आई कैन से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रिल्ड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी, है ना। और कोनिकल कैविटी का वॉल्यूम क्या है बेटा 1232, ये पता है आपने को। अब बोल रहा है कि द वेट 1232 सेंटीमीटर क्यूब, वेट निकालना है इफ फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब द वेट इज 7 ग्राम। तो एक बात बताओ बेटा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इफ द वेट इज 7 ग्राम, तो आई कैन से कि सर 1232 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वेट विल बी 7 into 1232, so you'll be getting 7 to the 14 power 1, 21 plus 1 is 2 power 2, 14 plus 2 16 power 1, 7 plus 1 8, so 8624 grams, or you can say 8.624 kg divided by 1000। ठीक है, as simple as that, बस हो गया तुम्हारा 8.624 kg। ठीक है, अब दिस क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन भी कर लो। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इन द नेक्स्ट क्लास मेंटी जब होगा, इन दैट आई विल डिस्कस होमवर्क ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज ये वाला, दोनों क्वेश्चन में साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का सरफेस एरिया मेल्ट करके रिकास्ट किया है सर्कुलर कोन्स में। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर बताओ और नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट जो हुए हैं वो बताओ। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करना। ओके बेटा, सो एज आई वाज टेलिंग यू एट द स्टार्टिंग कि अगर ये लिंक पे जाओगे, दोज हु वांट टू रजिस्टर फॉर वेदांतोस कोर्स, यू नीड टू गो टू दिस लिंक। इस लिंक पे जाने के बाद में सेलेक्ट योर ग्रेड 10th ICSE 2021 और ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, आफ्टर दैट तुम्हें 3 चॉइसेस है, 1 month, 3 months, 6 months। इफ यू आर टेकिंग मोर नंबर ऑफ मंथ, ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स ले रहे हो बेटा, तो उसमें क्या रहेगा कि तुम्हारे को 2 अच्छे फायदे हैं। एक तो है कि तुम्हारा जो होगा कि ज्यादा टाइम तो वेदांतों के साथ रहोगे तो एक्सपोजर अच्छा रहेगा, यू विल बी गेटिंग, तुम्हारा जो फाउंडेशन होगा वो रॉक सॉलिड हो जाएगा।
समझ लो, तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट थिंग इज प्राइस पर मंथ जो है ना वो कम होते रहेगा। तो मान लो अगर तुम एक महीने के लिए इफ यू आर सपोज पेइंग हियर सपोज 2294, तो ऐसा नहीं है 6 मंथ्स के लिए 6 into 2294, नहीं, इट इज वे लेस देन दैट, गॉट इट। तो ज्यादा मंथ लेना मोर वैल्यू फॉर मनी इट इज, ठीक है। अब एंटर कूपन कोड में बेटा क्या करोगे, बस यहाँ पे कूपन कोड लगा दो जीपी प्रो। जैसे ये कूपन कोड लगाओगे जीपी प्रो, तो अर्लियर प्राइस तुम्हें ये शो करेगा, मगर 15% ऑफ हो जाने के बाद में इट विल बिकम दिस। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, हर एक में ये कूपन काम करेगा, जीपी प्रो सब में ये कूपन कोड काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज द लिंक, दिस इज द कूपन कोड। थैंक यू सो मच बच्चों सेशन को एंजॉय करने के लिए। अगर एंजॉय किया है तो शो अस योर लव, लाइक करना वीडियो को, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच, आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। So this is all from my side. Thank you so much. I'll see you soon in the next class. Till then, bye bye. Sayonara. Khuda Hafiz to all of you. Bye bye.